Yes, good evening everyone. So we'll continue with the characteristics of block elements. Yesterday we had seen characteristics of S block element, P block element, D block element, and today we will continue with the characteristics of F block elements. कल का थोड़ा सा डिस्कशन डी ब्लॉक का क्या चल रहा था? इट इज प्लेस बिटवीन एस एंड पी. डी ब्लॉक is placed between S and P, and more what we see on the left side, all the metals and at least two groups from here of P block which we see are somewhat non-metals and their electronegativity. So this is D block element known as transition element. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखे थे? डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकेंगे हम डी ब्लॉक के लिए? NS2 N-1 D 1 to 10 है ना? NS2 N-1 D 1 to 10 यानी कैसा आएगा? जैसे 4S2 3D 1 to 10 जो एक आपको मिलेगा पहला वाला मेंबर है ना, 3D से शुरू होने वाला है. इट इज फ्रॉम दिस फोर्थ पीरियड यानी थर्ड शेल 1 2 3 थर्ड शेल फोर्थ पीरियड. So general electronic configuration for D. Now we'll move to characteristics of F block element. F block elements, they are placed at the bottom of the periodic table and they consist of two series. The first series is what we call as lanthanide series, starting from cerium 58 to lutetium 71. So this is the lanthanide series 58 to 71, cerium to lutetium 58 to 71, and this is named because most of the properties of these series element is similar to that of lanthanum. तो ये lanthanum है, lanthanum group 3 6 period, वहां से ये F block की lanthanoid series generate हो गई है. From where it has been generated? Group 3 6 period, it is generated from there itself and it includes 14 elements. तो ये 14 elements है and all these elements are metals, है ना, all them are metals and they show properties somewhat similar to that of La. La is what? Lanthanum. तो lanthanum से ही ये सीरीज बनी lanthanoid series और lanthanoid series, one and the same. So lanthanide or lanthanoid series, the name derived from the element lanthanum having atomic number 57. यानी lanthanum यहाँ situated है. It is not a part of F block. Lanthanum is a part of D block. इसके बाद वाले जितने 14 elements है वो F block में है और उनका नाम जो आ गया है वो काय से डिराइव किया है? lanthanum से. That's why known as lanthanide. जैसे अपने यहाँ भी बोलते हैं ना, नागपुरकर, भंडारकर, भंडारा के रहने वाले भंडारकर, पुणे मुंबई कर. तो वो कैसे आ गया? वैसे यहाँ पर कि ये सारी प्रॉपर्टीज lanthanum के आसपास मिलती जुलती है, तो नेम्ड एज lanthanide. नेक्स्ट सीरीज है actinide series. It is also consisting of 14 elements and they all are metals. Actinide series is from thorium 90,
से कहां तक गया वो, लॉरेंशियम, लॉरेंशियम Lr 100 एंड कितना दिख रहा है आपको, 103, 103 is lawrencium. So these are the 14 elements and they follow the many properties are similar to that of actinoid which whose atomic number is 89. तो ये actinium actinium से नाम आ गया actinide series and 14 elements again they are placed at the bottom of the series. They are also known as inner transition series. Inner transition दोनों के लिए inner transition elements और inner transition series. एक्टिनाइड सीरीज में या एक्टिनॉइड सीरीज में क्या देखेंगे आप कि आफ्टर एटॉमिक नंबर 92, 92 किसका दिख रहा है आपको यहाँ पर, यूरेनियम है ना, आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 दैट इज U92 द एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट यानी 93 से 103 तक के, 92 के बाद में ये एलिमेंट देखो सब येलो कलर में दिख रहे हैं है ना, तो ये सब क्या है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आफ्टर एटॉमिक 92 दैट इज कहां से शुरू हो रहे हैं, 93, 93 किसका है, नेपच्यूनियम से लेके तो आपका लॉरेंशियम 103. These elements are known as transuranic elements and they are man-made or artificially prepared element. Artificially prepared element. So what are transuranic? After uranium 92 elements are known as transuranic elements. They all, वैसे तो ये सभी रेडियो एक्टिव है, all actinide series metals they all are radioactive. रेडियो एक्टिव को आइडेंटिफाई करना है तो ये रेड वाला साइन देखिए आप, ये रेडियो एक्टिव का, ये रेडियो एक्टिव का सिंबल है यहाँ पर एंड ऑल देम आर हैविंग दिस सिंबल. तो पूरे एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है दे ऑल आर रेडियो एक्टिव. 92 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट एंड ऑल दीज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स are artificially prepared or man-made prepared elements. एक्टिनॉइड सीरीज में सभी रेडियो एक्टिव है और लेंथेनाइड में एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव है. क्या दिख रहा है आपको रेडियो एक्टिव, लेंथेनॉइड में प्रोमीथियम PM, PM प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, रेस्ट आर नॉर्मल. एक्टिनॉइड में पूरी सीरीज रेडियो एक्टिव, लेंथेनॉइड में सिर्फ एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव एंड दैट इज PM प्रोमीथियम. प्रोमीथियम इज what we see here as a radioactive element and atomic number is 61. So 61 promethium is radioactive element. Okay, तो अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या बनेगा, आप बता सकते हैं यहाँ से, यस व्हाट इट कुड बी, जैसे NS2, F किसके बाद में आता है, D के बाद में, और D को आपने क्या लिखा था, N-1D, इसीलिए तो मैंने लिख के रखा हूं यहाँ पर D वाला, है ना, इट इज N-1D 1 to 10 और इसके बाद आएगा 4F,
तो 4f क्या होगा, n-2f, यानी ns2 n-1d 1 to 10, या 10 भी रहेगा, इनर है तो n-1d 10 n-2f 1 to 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसी एक एलिमेंट का तो अपने को क्लियरली समझेगा कि ये n-2 है क्या, है ना। तो उसके लिए एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, और आप हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आपका भी रिवीजन होगा। लेट अस टेक दिस एलिमेंट प्रेसियोडाइमियम Pr, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, प्रोमीथियम, प्रेसियोडाइमियम Pr, atomic number is 59. It is a F block element। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है, चलिए जी लिखते हैं इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 5s2 4d10 4d10 5p6 4f। इसको काउंट कर लेते हैं कितने लगने वाले, 4f6 लगते हैं या 4f7 लगते हैं, दैट वी विल सी। 4f3 लगेंगे। ओके, लेट अस काउंट। ये कितने आ गए बेटा, 10, ये 20, ये 30, यहां से ये 38, ये 48, 6 और ऐड किया तो 54, और कितने चाहिए अपने को, 5। 6s आ जाएगा इसके बाद, इसके पहले। ये 6 पीरियड को बिलोंग करता है ना। यही कह रहा हूं मैं, यहाँ ये 6s2 आएगा और 4f3 आना चाहिए, है ना। कितने ऐड करने हैं और अपने को 5 ऐड करने हैं ना, तो ये 5 हो गए ना, हो गया 59। तो लेट अस सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वंस अगेन। सो वैलेंस शेल 4d10 5p6 6s2 4f3। वैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। या ये भी इंक्लूड करेंगे 4p, जी नहीं, आप ये दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो 4f3 6s2, तो 6s2 4f3 डन। अब इसमें से बताइए, आपको दिख रहा है क्या n-2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6, n इज इक्वल टू 6, और n-1 करेंगे तो वो d मिलेगा आपको, n-1d। कौन सा d है वो, 5d होना चाहिए ना, ये 5p, n-1d और n-2f, n-2f आ रहा है, ये 6 और ये 4, 6 and 4, 6s2। तो n-1d कहां पर है बेटा, n-1d नहीं मिल रहा ना अपने को, n-1d 4d10 3d 4s 5s, 5d तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, 5d तो नहीं आएगा। तो इस केस में n-2f ऑर्बिटल, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-2f 1 to 14। तो n रहेगा आउटर मोस्ट
उसमें से 2 ऑर्बिटल कम वाला F आ जाएगा ऑर्बिटल। तो NH2 N-2 F 1 to 14. Differentiating electron enters in F orbital and hence they belong to F block in periodic table. तो यहाँ पर प्रेसियोडाइमियम xenon 54 4f3 6s2 ओके 4f3 6s2 तो N-2F। वैसा ही आप ये थोरियम में भी देखेंगे तो 6d2 7s2 thorium atomic number 90 and the last configuration is radon। रेडॉन का कितना एटॉमिक नंबर है लास्ट में वहां देखेंगे, रेडॉन इज 86, करेक्ट है। तो ये एक साथ 86 आ गया एंड देन इट इज 6s2 6d थोरियम 6d क्यों आ रहा है, 6d2 7s2 विल टेक द नेक्स्ट वन थोरियम 6d2 लिखते हैं 6d2 7s2 हाँ ठीक है ना। ये इसको मैं अभी जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोरियम बिलोंग्स टू F ब्लॉक, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6d2 7s2 तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है रेडॉन 86 6d1 5f1 7s2 ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये 6d2 रख के 7s1, दिस इज मोर कन्वीनियंट, नो दिस इज मोर कन्वीनियंट। 6 ये एक्सपेक्टेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। आपको F ब्लॉक में ये एनोमैलिटी दिखेगी, हमको 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे, एक एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एक एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। F का कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल होने से इलेक्ट्रॉन 1 से 14 कहीं भी जा सकता, और जब वो 1 से 14 में जाता है तो D वाला इलेक्ट्रॉन उसके बहुत क्लोज हो जाता है। सो क्योंकि 6d और 5f ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये जनरेट होगा 6d1 5f1 7s2, ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। थोरियम इज अ F ब्लॉक एलिमेंट। आप देखेंगे नेक्स्ट प्रोटेक्टिनियम, तब एकदम आइडिया क्लियर होता है। मैं यहां फिर से लिखता हूं प्रोटेक्टिनियम, लेट इट बी थोरियम आपने देखा है, मैं प्रोटेक्टिनियम लिखता हूं। प्रोटेक्टिनियम Pa atomic number 91, it is having radon 86 radon 86 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूरा लिखेंगे हम उससे मिलेगा 5f2 6d1 5f2 6d1 एंड 7s2। अब देखिए ये कैसे आ गया, 5f2 कैसे आ गया ऑल ऑफ ए सडन, ये है 5f1 क्या है थोरियम, थोरियम इज 6d1 5f1 7s2। नेक्स्ट वाला मेंबर 91 5f2 6d1 7s2। इसके बाद वाला यूरेनियम 92 वो आएगा फिर से रेडॉन 86 5f3 6d1 7s2। एक एक करके बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो काय में आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में। तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल में लिखा कॉन्फ़िगरेशन
आपको दिखेगा 6d27s2, यानी यहाँ पर F वाला मिसिंग है, तो वो क्या है, एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल क्या होता है, 6d का एक इलेक्ट्रॉन 5s में ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये दोनों का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ns2 npf1214, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बीच में क्या आता है, ये देखो D वाला, तो ऐसा भी आपको किसी बुक में मिल सकता है n-1d, ये रहेगा जस्ट 1 और 2, एंड n-2 f1214। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ चला गया, अपना 5f में चला गया, वैसे ही यहां पर भी होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 6d 0 हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो 6d 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे, नो मोर फर्दर कंफ्यूजन, ns2 n-2 f1214। ये देखिए 7s2, n की वैल्यू 7, और f के लिए n-2 5f2, ns2 ये कॉमन, n की वैल्यू 7 और n-2 यानी 5f यहाँ पर आ गया, और यहाँ भी n-2 5f यहाँ पर आ गया। तो अभी बहुत ज्यादा इसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मैंने कहा ना इसके हर एक एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे, एक एक्सपेक्टेड और एक एक्चुअल, वो अभी समझेगा भी नहीं और अभी हमें डिस्कस भी नहीं करना है, जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब डिटेल जाते हैं। तो राइट नाउ अवर फोकस शुड रिमेन ऑन एफ ब्लॉक, शुड बी, अगर शॉर्ट नोट आता है एफ ब्लॉक में तो क्या लिखेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, those elements in which the last electron enters in the f orbital. F block elements are placed at the bottom of the periodic table. They are derived from third group 6 period named as lanthanide series, the second again from third group 7th period 14 element named as actinide series. ये आगे आपके 4 पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट आएगा, its general electronic configuration is ns2 n-1 f1214। और अगर उसमें लिखना है हमको जनरल और प्रॉपर्टीज लिखनी है तो इन lanthanide सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, ऑल आर मेटल्स, वो तो दोनों भी सीरीज में ये सब मेटल्स हैं, एंड promethium is radioactive only in lanthanide series, whereas in actinoid series post uranium, है ना, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, पोस्ट यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले, है ना, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, एंड दीज ट्रांस यूरेनिक इज फ्रॉम 93 to 103, and they all transuranic elements, they are man-made or artificially prepared elements। तो ये हो गया F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and general characteristics of F block elements. Now we will move to another aspect, and that is periodic trends in elemental properties। तो यहाँ पर हमको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का है, तो हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज अगर हमें समझेगी तो आगे की, ये प्रॉपर्टीज अगर समझ गई पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, तो बाकी प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट वी टेक इज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये फंडे को पहले समझना पड़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। कितने लोग ज्वाइन हुए आज ऑनलाइन में? 10 12 ओके 12 हुए हैं। ओके अनिरुद्ध, चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट वी विल सी। ओके, क्या देखने का है? हम स्ट्रक्चर से थोड़ा सा फिर से एक बार स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं। This is nucleus having proton and neutron in it, and electrons are outside. The first shell n is equal to 1, then 2, 3 and 4. When we move along the period, when we move along the period, what will happen to the nuclear charge, and when we move down the group, what will happen to the न्यूक्लियर चार्ज। पहले न्यूक्लियर चार्ज को एक बार समझेंगे और उसके बाद फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आते हैं। न्यूक्लियर चार्ज डिनोटेड बाय Z, क्योंकि प्रोटॉन के कारण होता है न्यूक्लियर चार्ज, तो डिनोटेड बाय Z। तो इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट विल हैपन? What will happen to the nuclear charge? It will increase or it will decrease? Increase. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट, है ना। जैसे सोडियम है यहाँ पर 11 और ये सोडियम मैग्नीशियम से लेके तो आप जा रहे हैं क्लोरीन तक के, क्लोरीन 17। तो 1 बाय 1 एक एक प्रोटॉन ऐड होते जा रहा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा, तो इंक्रीज तो हो रहा है यहाँ पर। अब वैसे ही डाउन द ग्रुप में बात करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो क्या होगा? जैसे हम यहाँ लेते हैं बेरिलियम से रेडियम, व्हाट विल हैपन टू न्यूक्लियर चार्ज? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या हो रहा है? जल्दी से आपका आंसर चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और रेडॉन का 88 है, तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहां भी बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज होगा? यस, इसीलिए तो ये पहले इसको न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ेंगे, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ देखिए पीरियड में क्या हो रहा है, ये डायग्राम भी उसी लिए बना है कि अगर हमने सपोज यहाँ से थर्ड सीरीज लिया हमने, है ना, तो इसमें s ऑर्बिटल sp और spd, थर्ड वाला कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमको थर्ड सीरीज में? थर्ड 1 n is 1, यानी हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, ओनली s। सेकंड में क्या आ जाएगा? लिथियम बेरिलियम, और थर्ड में क्या आएगा? सोडियम मैग्नीशियम। करेक्ट है। सोडियम में आई एम सॉरी, सोडियम में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, करेक्ट है। और क्लोरीन में क्या आएगा? क्लोरीन में, हाँ जी, 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p5, करेक्ट है। तो यहां पर ये वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है। सोडियम का डायग्राम और क्लोरीन का डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो थर्ड शेल दोनों में होंगे। इसको सोडियम का कंसीडर करते हैं एंड दिस इज फॉर क्लोरीन।
सोडियम के 11, क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 में से 11 में से एक इलेक्ट्रॉन 3s1 हियर, थर्ड शेल। अरे जरा बोलने का, चुपचाप ऐसे बैठने का नहीं, आपके तरफ देख रहे हैं तो, है ना। ये थर्ड शेल हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में भी थर्ड शेल रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 5 की 7? सागर कितने? 5 और 7, 7 आएंगे ना। ये न्यूक्लियस है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहां से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। कहां फोर्स ज्यादा रहेगा, कहां फोर्स कम होगा? जल्दी आंसर, 5 मिनट बाकी। ओके, कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अच्छे से बोलिए। सोडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और क्लोरीन में कम होगा। गलत। सोडियम में अट्रैक्शन कम रहेगा क्योंकि 11 प्रोटॉन थर्ड शेल से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से ही अट्रैक्ट कर रहे। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस बढ़ा क्या? डिस्टेंस तो वही है जो सोडियम में है। जो साइज सोडियम में मिला वही साइज क्लोरीन में भी है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कहां पर जाता है? कहां ज्यादा है न्यूक्लियर चार्ज? दिख रहा है ना आपको? फिर बोलो ना जल्दी से। मैं सेकेंड टाइम जब पूछूं तब क्यों जोर के? न्यूक्लियर चार्ज कहां ज्यादा दिख रहा है? और सोडियम में न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसे हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिखता 17 है, लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का यहां पर और यहां पर कहां ज्यादा रहेगा? क्लोरीन में। इसीलिए क्लोरीन का साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज बड़ा होता है, बिकॉज थर्ड शेल इन्वॉल्व है दोनों में। साइज उतना ही है, लेकिन न्यूक्लियस का पुल कहां ज्यादा रहेगा? क्लोरीन में। इसीलिए ये क्या करेगा? थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और सोडियम श्रिंक नहीं होगा, तो इसका साइज कम हो जाता। इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज also increases when we move from left to right in a period. तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। समझा क्या फंडा? और न्यूक्लियर चार्ज के कारण आपने क्या एक और फिनोमिना समझा? एटॉमिक साइज, कि सोडियम इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन। हम इनर्ट की बात नहीं करते, एर्गॉन की बात नहीं करेंगे हम, है ना। तो सोडियम का साइज बिगर है, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, फिर भी इसका साइज कम क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द टर्म इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? अब डाउन द ग्रुप आपने इंक्रीज बोला है, ये रॉन्ग है। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा? मैंने यहां एटॉमिक नंबर भी दिया। अब देखने को तो लगता है यहां पर सिर्फ न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और न्यूक्लियस में यहां 88 प्रोटॉन है, तो ये तो ज्यादा होना चाहिए जो आपने देख के बतलाया। लेकिन इसके साथ में नंबर ऑफ शेल्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें टोटल 7 आएंगे शेल्स। रेडियम में 7 शेल्स आ जाएंगे, है ना। और इसके पास क्या रहेंगे? ओनली 2 शेल होंगे। तो न्यूक्लियस के 4, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, और यहां 88 इतने दूर से पुल करना है। सही है? तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में रिपेल भी तो करते हैं ना एक दूसरे को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो न्यूक्लियस के तरफ आने नहीं देते।
आर यू गेटिंग मी? ये आपस में इंटर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इनर वाले चलते रहेगा क्योंकि लाइक चार्जेस है और इतने सारे हैं तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियस ये वाले इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली पुल नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? समझा क्या फंडा? न्यूक्लियस को पुल किसको करना है? आउटर मोस्ट। लेकिन बीच में शील्ड आ गए, बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेंगे? ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, इनर कोर। ये कोर वाले इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देंगे बिकॉज दे कीप ऑन रिपेलिंग ईच अदर। तो यहाँ इफेक्टिव चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। टुमारो इज सैटरडे, वी विल हैव अवर क्लास एज यूजुअल।